Assalamualaikum everyone, and walaikum assalam to all of them who wrote it in the chat box. Allergy. So in the last class, we basically discussed respiratory substrates, energy values, and respiratory quotient. अच्छा, there was this one question that I had कि जो respiratory quotient का formula है कि कार्बन डाइऑक्साइड ऊपर आता है ऑक्सीजन नीचे आता है उसमें हम कंफ्यूज हो जाते हैं सो उसको याद करने का एक आसान तरीका है एंड दिस टाइप ऑफ एसोसिएशन I always try to find even when I'm trying to memorize stuff is that if there is an alphabetical order आप उस alphabetical order से याद कर लो so अगर आप देखो हमारी जो equation है RQ की that is basically carbon dioxide over oxygen, the amount of carbon dioxide produced over the oxygen consumed, right? So C comes first in the alphabetical system and O comes later. So C would be on the top and O would be below. So आप इस alphabetical association से ये formula बहुत आसानी से याद कर सकते हो. अच्छा जी. So respiratory quotient की हमने बात की थी. The respiratory quotient was simply the ratio of the amount of carbon dioxide produced to the volume of oxygen consumed per unit time. और हमने बात ये की थी that this RQ value, this ratio, can tell us whether the respiration was aerobic, whether it was anaerobic. And it can also tell us which respiratory substrate, whether lipid, protein, carb, was utilized. And how can we predict that? We need to know these values. The RQ for carbs is 1. The RQ for lipids is zero point 0.7 and the RQ for proteins is zero point 0.9. अच्छा जी now इसी concept को use करते हुए let's understand कि how we will be able to figure out what type of respiration took place. So हमारे पास what is the equation for RQ? It is amount of carbon dioxide produced over amount of oxygen consumed. Taking the example of carbohydrates, carbohydrates की जब हम equation लिखते हैं तो हमारे पास equation क्या होती है? C6H12O6 reacting with 6 moles of oxygen to produce 6 moles of carbon dioxide and 6 moles of water. Now, moles of oxygen, moles of carbon dioxide. 6 upon 6 gives us 1. So the maximum value of RQ when we're aerobically respiring has to be 1. So for aerobic respiration, the RQ value is less than or equal to 1. So if it is zero point 0.7, we would say it is the aerobic respiration of fats. If it is zero point 0.9, we would say it is the aerobic respiration of proteins. And if it is 1, we would say it is the aerobic respiration of carbohydrates. Now let's talk about anaerobic respiration. हमारे पास anaerobic respiration में क्या ऑक्सीजन कंज्यूम होती है हमारे पास एनारोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन कंजम्पशन नहीं हो रही होती क्यों नहीं हो रही होती हमारे पास ऑक्सीजन कंजम्पशन इसलिए नहीं हो रही होती बिकॉज द ऑक्सीजन इज यूज्ड इन द ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन स्टेप in anaerobic respiration there is only glycolysis taking place and after glycolysis we either enter the lactate fermentation cycle or we enter the ethanol fermentation cycle depending on what organism we're talking about so this oxygen becomes zero in the formula because there is no oxygen that is being consumed in anaerobic respiration. So let's say we have, hypothetically speaking, let's say 9 moles of carbon dioxide were produced in an anaerobic respiration and 0 moles of oxygen were utilized. Now 9 divided by 0 gives us what? It gives us infinity. सो हमारे पास ऑक्सीजन कंजम्पशन नहीं हो रही होती इन एनारोबिक रेस्पिरेशन तो यूजुअली हमारे पास जो वैल्यू आती है वो इन्फिनिटी आती है हाउएवर हमारे पास कभी कभार आप लोगों ने नोटिस किया होगा शायद आपके टीचर्स ने बताया हो या इवन बुक में भी लिखा होगा दैट एन एरोबिक respirations RQ value is greater than 1.
Now that is also true. The question is, अगर हमारे पास 0 moles of oxygen है और 0 हमारे पास हमारे डिनोमिनेटर में है, and if anything is being divided by 0, हमारे पास आंसर हमेशा indivisible सॉरी what do you say infinity होता है. So अगर हमारे पास infinity होता है, हम मैथ एरर दे रहा होता है हमें, so how are we getting the value of positive of greater than 1 in anaerobic respiration? Now you guys would remember हमने एक वर्ड इस्तेमाल किया था, ऑक्सीजन डेट. ऑक्सीजन डेट क्या होता है? दैट once our body gets the ऑक्सीजन सप्लाई अब मिलना शुरू हो गई है, या आप रेस्ट की पोजीशन पे जा रहे हो, तो आपका जो भी ऑक्सीजन डेफिसिट क्रिएट हुआ होता है, जिसकी वजह से आपका एनएरोबिक पाथवे ट्रिगर होता है, दैट ऑक्सीजन डेट हैज टू बी रीपेड. और उस ऑक्सीजन डेट में क्या होता है, हम लैक्टेट को कन्वर्ट कर रहे होते हैं इनटू पायरुवेट और ग्लूकोज. तो हमारे पास एनारोबिक रेस्पिरेशन के ऑक्सीजन डेट को पे करने के लिए हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन को यूटिलाइज करते हैं. डू यू गाइस अग्री दैट द ऑक्सीजन डेट इज पेड वंस ऑक्सीजन इज अवेलेबल इन द बॉडी? आर यू गाइस फेमिलियर विद दिस कॉन्सेप्ट? So to pay back the oxygen debt, we are utilizing oxygen. ठीक है, लैक्टेट को कन्वर्ट करने के लिए इनटू ग्लूकोज, या लैक्टेट को कन्वर्ट करने के लिए इनटू पायरुवेट, वी वुड नीड ऑक्सीजन. तभी हमारा जो एनारोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन डेफिसिट था और जो ऑक्सीजन डेट हमें रीपे करना है, वो तभी रीपे हो सकता है व्हेन ऑक्सीजन इज अवेलेबल. तो वो जो ऑक्सीजन डेट के टाइम पर ऑक्सीजन कंजम्पशन हो रही होती है, उसके मोल्स लिख दिए जाते हैं इन वर्ड इन योर denominator, and that is how you get a value of greater than 1. So value, if the value of the RQ is infinity, or if the value of RQ is greater than 1, then that would be the anaerobic respiration. And if the value is 1, 0.9, 0.7, that would be aerobic respiration. Okay? Are we all clear on this concept? How we can figure out the respiratory substrates from the RQ value, and how we can figure out the type of respiration from the RQ value? Any questions? Yes, Ryan, do you have a question? यस मिस इन एनारोबिक रेस्पिरेशन हम किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे तो ग्रेटर देन वन क्यों आएगा लाइक if the numerator is bigger than the denominator, so we would get it in points, right? We could get it in a value that is less than one. Why is it always going to be greater than one? हमारे पास अगर लेट्स से 4 moles ऑफ ऑक्सीजन यूज हुए, हमारे पास बेसिकली इक्वेशन को रेस्पिरेशन की, एनारोबिक रेस्पिरेशन की जो इक्वेशन होती है, उसमें कहीं पर भी ऑक्सीजन होता है. अगर हम बात करें लैक्टेट फर्मेंटेशन की, तो लैक्टेट फर्मेंटेशन में क्या होता है, वी हैव लैक्टेट क्योंकि ब्रेक डाउन कर रहा होता है इनटू सॉरी सॉरी हमारे पास ग्लूकोज होता है. इट्स बेसिकली व्हाट इट इज C6H12O6 breaking down into C3H6O3. इसके 2 moles होते हैं एंड 2 moles ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, यही होता है. Yes. सॉरी, ये एक ही ना. हमारे पास इस पूरी इक्वेशन में कहीं पर भी ऑक्सीजन नजर आ रहा है आपको? सो हमारे पास जो कार्बन डाइऑक्साइड के मोल्स होंगे और जो ऑक्सीजन के मोल्स होंगे, दे वुड नॉट बी सिमिलर. ठीक है, हमारे पास जो ऑक्सीजन की यूटिलाइजेशन हो रही है, वेयर इज ऑक्सीजन कमिंग इन दिस इक्वेशन और इन दिस फॉर्मूला, इट इज कमिंग आफ्टर द एनारोबिक रेस्पिरेशन हैज टेकन प्लेस. एनारोबिक रेस्पिरेशन के टाइम पे जो ऑक्सीजन डेट या ऑक्सीजन डेफिसिट क्रिएट हुआ होगा, उसको पे बैक करने के लिए हमें ऑक्सीजन चाहिए होती है. Now that oxygen most of the time is not equal to the number of, what do you say, carbon dioxide, or it is not greater than the number of the moles of carbon dioxide. Let's say हमारे पास हमने 4 moles of ऑक्सीजन हमें यूटिलाइज किए हमने ड्यूरिंग द ऑक्सीजन डेट वाला फेज. So 9 divided by 4, what would that be? If anybody can do that for me. 2.25. या फिर अगर हम यहाँ पर लेट्स से 5 कर दें, 5 moles of oxygen, that would also be a value greater than 1. अगर मैं इसको 6 भी कर देती हूँ, that would also give me a value greater than 1. So हमारे पास anaerobic respiration में जो moles of oxygen होते हैं, they would always be or most of the times be less than the amount of carbon dioxide produced.
इज दिस क्लियर टू एवरीवन? तो इसी वजह से हमारे पास जो वैल्यू आएगी आर क्यू की, दैट वुड बी ग्रेटर देन 1। ठीक है राइमा? यस बस, थैंक यू। विच रिएक्शन आर यू टॉकिंग अबाउट अमर? ये जो मैंने लिखा था अभी? ओके, सॉरी फॉर द इंटरप्शन। हमारे पास मैंने इक्वेशन क्या लिखी थी? लैक्टेट, सॉरी, ग्लूकोज C6H12O6, ये कन्वर्ट हुआ होगा इनटू पायरुवेट, and that pyruvate would be converted into what do you say, lactate. Now lactate is C3H6O3. I think so, that's the formula of lactate. And हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रोड्यूस होती है। Isn't that what happens in lactate fermentation? हमारे पास glycolysis होता है, glycolysis से pyruvate बनता है, that pyruvate becomes lactate, right? और हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो रही है। इस पूरे फेज में, ग्लाइकोलिसिस में और फर्मेंटेशन में, किसी भी स्टेप में क्या हम ऑक्सीजन यूज कर रहे हैं? बिकॉज ऑक्सीजन इज नॉट बीइंग यूटिलाइज्ड, इट इज anaerobic respiration or an anaerobic reaction. Is this clear, Amar? Miss, can you hear me? Yes, yes. Miss, this one, जो आपने पिछला पढ़ा है, that 9 divided by a number of moles of oxygen, जैसे कि 9 हम्म। divided by 4, so हम्म। 2.25 आ रहा है आंसर, which is greater than 1. So is यस। that anaerobic respiration? यस, हमारे पास जब भी ग्रेटर देन 1 RQ वैल्यू आएगी, वो कब होगी? जब एनारोबिक रेस्पिरेशन होगी। ठीक है, Okay. चलिए। अच्छा जी, सो RQ वैल्यू से फिगर आउट कैसे करना है? हमारे पास जो भी रेशियो की वैल्यू आएगी, उस वैल्यू से हमें पता चल जाएगा एरोबिक रेस्पिरेशन हुई है या एनारोबिक रेस्पिरेशन हुई है। सिमिलरली हमें अगर ये तीन वैल्यूज आती हैं, इन तीन वैल्यूज को हमें याद रखना है। 0.7 है तो लिपिड्स की रेस्पिरेशन हुई है एरोबिकली, 1 है तो कार्ब्स की रेस्पिरेशन हुई है, एंड 0.9 है तो प्रोटीन्स की रेस्पिरेशन हुई है। अच्छा जी, लेट्स मूव टूवर्ड्स रेस्पायरोमीटर। um if the reaction is anaerobic, okay, वो अभी हम रेस्पिरोमीटर का जो क्वेश्चन करेंगे ना, उससे हम, that's when I'll answer your question, क्योंकि उसमें हमें देखना है कि किस तरह से we figure out the RQ values from a respirometer experiment. अच्छा जी, ये हमारे पास एक रिस्पायरोमीटर है। नाउ व्हाट इज रिस्पायरोमीटर? रिस्पायरोमीटर हमारे पास एक ऐसा एक्सपेरिमेंटल सेटअप होता है, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे हम रेस्पिरेशन को मेजर कर सकते हैं, रेट ऑफ रेस्पिरेशन को मेजर कर सकते हैं। ना इस सेटअप में क्या होता है? दिस इज इम्पोर्टेंट फॉर योर P5, बिकॉज P5 में रिस्पायरोमीटर को लेके क्वेश्चंस आते हैं, P4 में भी आ सकता है। आज हम एक क्वेश्चन करेंगे क्लास में रेस्पायरोमीटर का, विच इज अ P4 क्वेश्चन, बट यूजुअली इसके ज्यादातर सवाल P5 में आता है। सो यू नीड टू नो कि इस एक्सपेरिमेंट में हमें क्या क्या इंस्ट्रूमेंट्स चाहिए होते हैं और क्यों चाहिए होते हैं। नाउ हमारे पास फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आपको क्या चीज नजर आ रही है? आपको एक टेस्ट ट्यूब नजर आ रही है, ठीक है। अब इस टेस्ट ट्यूब में क्या है? इस टेस्ट ट्यूब में स्मॉल ऑर्गेनिजम्स हैं। हमारे पास एंट्स हो सकती हैं, या बिल्कुल जो हमारे पास माइन्यूट ऑर्गेनिजम्स हैं, वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। क्यों? बिकॉज वी नीड समथिंग दैट इज रिस्पायरिंग, क्योंकि हम मेजर ही रेस्पिरेशन को कर रहे हैं, तो हमें कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म चाहिए जो रिस्पायर कर रहा हो, जो कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड इनपुट और आउटपुट हमें दे सके। सो वी नीड टू हैव स्मॉल ऑर्गेनिजम्स, या फिर स्मॉल ऑर्गेनिजम्स के अलावा हम यीस्ट सेल्स भी रख सकते हैं। सो एनी रेस्पायरिंग स्पीशी शुड बी देयर इन द टेस्ट ट्यूब। बीच में हमारे पास एक गॉज होना चाहिए। गॉज क्या होता है? इट्स लाइक, आप लोगों ने शायद देखा भी हो, हॉस्पिटल में हमारे पास एक गॉज टेप होता है, व्हाइट कलर का या रेड कलर का। वो हमारे पास बेसिकली होल्ड कर रहा होता है इन ऑर्गेनिजम्स को। सो दिस गॉज इज लाइक अ फाउंडेशन, इज लाइक अ बेस, जिसपे ये ऑर्गेनिजम्स मतलब बैठे हुए होते हैं या स्टे किए हुए होते हैं। और हमारे पास उसके बिल्कुल नीचे क्या होता है? सोडा लाइम होता है। सोडा लाइम हो सकता है, सोडा लाइम हमारे पास क्या होता है? आई थिंक सो इट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। हम यहाँ पर या तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रखते हैं, या फिर हम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रखते हैं। क्यों रखते हैं? आई जस्ट टेल इट इन अ बिट। ना हमारे पास जब ऑर्गेनिजम्स रिस्पायर करते हैं, सो दे गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड एंड दे टेक इन ऑक्सीजन। सो हमारे पास ऑक्सीजन कंजम्पशन हो रही होती है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोडक्शन हो रही होती है। इक्वेशन क्या होती है? इक्वेशन हमारे पास होती है
C6H12O6 plus 6 oxygen, giving us 6 moles of carbon dioxide and 6 moles of water. Now my question over here is, हमारे पास अगर 6 moles of oxygen take in कर रहा है ये organism और 6 moles of कार्बन डाइऑक्साइड आउटपुट दे रहा है, तो क्या हमारे पास जो एयर प्रेशर है उसमें कोई फर्क पड़ेगा? बिकॉज जितनी एयर उसने कंज्यूम की है उतनी वो गिव बैक भी तो कर रहा है. सो वुड द एयर प्रेशर चेंज if 6 oxygens are taken in and 6 carbon dioxide are produced back? क्या एयर प्रेशर पे कोई फर्क पड़ेगा? एग्जैक्टली एयर प्रेशर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. एयर प्रेशर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सो वी वुड नॉट बी एबल टू मेजर और सी कि हमारे पास किस तरह से रेस्पिरेशन हो रही है. फर्दर मोर हमारे पास जो एयर है दैट इज इनविजिबल. मैं और आप एयर को देख नहीं सकते. उसकी एग्जिस्टेंस को हम शायद फील कर सकते हैं, और वो भी हम तब फील करते हैं जब विंड चल रही होती है. सो फॉर अस एयर इज समथिंग दैट इज इनविजिबल, इट्स इनटैंजिबल टू अस. ठीक है. तो वी नीड टू क्रिएट समथिंग, सम सेटअप जिसमें हमारे पास एयर प्रेशर चेंज हो रहा हो. क्योंकि एयर प्रेशर चेंज हो रहा होगा तभी हम पता कर सकेंगे कितनी ऑक्सीजन यूटिलाइज हुई है या कितनी कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुई है. नाउ ओ लेवल केमिस्ट्री से या इवन ओ लेवल बायोलॉजी से आप लोगों को ये बात याद होगी कि कार्बन डाइऑक्साइड इज एन एसिडिक गैस. हमारे पास नॉन मेटल ऑक्साइड्स जो होते हैं वो एसिडिक इन नेचर होते हैं, जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड इज एन एसिडिक गैस. हमारे पास वी कीप एन अल्कलाइन सब्सटेंस इन दिस सेटअप. ये अल्कलाइन सब्सटेंस हमारे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो सकता है या फिर हमारे पास पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो सकता है. The purpose of keeping this alkaline substance is we know that acid and alkali undergo a neutralization reaction. So होगा क्या कि हमारे पास जो ये कार्बन डाइऑक्साइड ये ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस कर रहे होंगे, that carbon dioxide would be taken in, would be absorbed by this alkaline substance. Calcium hydroxide या potassium hydroxide इस कार्बन डाइऑक्साइड को absorb कर लेगा, जिसकी वजह से अब क्या होगा? ऑक्सीजन तो ये ऑर्गेनिज्म कंज्यूम कर रहा है, ले रहा है एनवायरनमेंट से, एयर से ऑक्सीजन वो ले रहा है. लेकिन उस ऑक्सीजन को जो वो ले रहा है उसको फिल बैक करने के लिए मेरे पास कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है. व्हाई? बिकॉज दैट कार्बन डाइऑक्साइड इज बीइंग एब्जॉर्ब्ड बाय द सोडा लाइम, बाय कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और बाय द पोटेशियम हाइड्रोक्साइड. जिसकी वजह से क्या मेरे पास एयर प्रेशर कम हो जाएगा इस जगह में? वुड द एयर प्रेशर रिड्यूस? बिकॉज वो 6 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन ले रहा है और जो कार्बन डाइऑक्साइड वो दे रहा है वो तो absorb हो रही है. तो हमारे पास ओवरऑल एयर प्रेशर इनसाइड दिस टेस्ट ट्यूब, वुड दैट डिक्रीज? डू यू ऑल एग्री विद दिस कॉन्सेप्ट? अगर कोई क्वेश्चन है मैं फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ. सबको क्लियर है कि प्रेशर डिक्रीज क्यों है? ओके अमर, आप मुझे अनम्यूट करके बताओ क्या कंफ्यूजन हो रही है. Just can you repeat this once again? ओके. अच्छा, हमारे पास जब रेस्पिरेशन हो रही होती है 6 ऑक्सीजन मोल्स हम एयर से कंज्यूम कर रहे हैं, ऑर्गेनिज्म 6 मोल जो है ऑक्सीजन के ले रहा है, लेकिन उसके बदले में 6 मोल कार्बन डाइऑक्साइड के दे भी रहा है. सो इफ इट इज टेकिंग 6 यूनिट्स ऑफ द एयर, इट इज गिविंग बैक 6 यूनिट्स अगेन. तो मेरे पास कोई ओवरऑल प्रेशर चेंज नहीं क्रिएट हो रहा, एक बैलेंस है ना यहाँ पर. डू यू अग्री विद दिस कि मेरे पास नॉर्मल कंडीशंस में एक बैलेंस्ड सिस्टम होता है Yes. ना? हमें इस बैलेंस को डिसरप्ट करना है. क्यों डिसरप्ट करना है? बिकॉज वी हैव टू फाइंड आउट कि हमारे पास कितनी गैस टेकन हुई है या कितनी गैस गिव अवे हुई है, सो दैट वी हैव अ क्वांटिटी, और उस क्वांटिटी के थ्रू मैं रेस्पिरेशन के रेट को मेजर कर सकूं. वो क्वांटिटी मुझे कैसे पता चलेगी? वो क्वांटिटी मुझे तभी पता चलेगी व्हेन आई कैन मेजर द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन यूज्ड और आई कैन मेजर द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड. हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर इस सिस्टम में एक अल्कलाइन सब्सटेंस रखते हैं. अल्कलाइन सब्सटेंस क्यों रखते हैं? बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड इज एन एसिडिक गैस. ये जो एसिडिक गैस है ये क्या करती है, ये हमारे पास अल्कली के साथ
मिक्स हो जाती है, एब्जॉर्ब हो जाती है और न्यूट्रलाइजेशन हो जाती है। सो हम कार्बन डाइऑक्साइड को जो गिव अवे कर रहा है ये ऑर्गेनिज्म, उसको हमने रिमूव कर दिया सिस्टम से। मेरे पास सिस्टम से अगर कार्बन डाइऑक्साइड एलिमिनेट हो रही है, रिमूव हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो रही है, ऑक्सीजन कंटिन्यूअसली कंज्यूम हुए जा रही है, ऑक्सीजन इज बीइंग टेकन इन फॉर रेस्पिरेशन, wouldn't that cause a decrease in air pressure over here? Do you now understand this, Amar? Why does the air pressure decrease? हमारे पास एयर प्रेशर क्या होता है? एयर प्रेशर ये होता है कि मेरे पास जितनी गैसेस हैं, ओके वेट, मेरे पास, चलो सब मिटा देते हैं एक मिनट के लिए, ये एयर है, इस पूरे सेटअप के अंदर एयर प्रेजेंट है। अच्छा, यहाँ से हमने क्या किया हुआ है, यहाँ से हमने इंश्योर किया हुआ है कि इधर से कोई एयर लूज नहीं हो रही है, हमने एक रबर बंग इंसर्ट किया हुआ है। एयर कहाँ से आ रही है? एयर यहाँ से आ रही है, ठीक है। नाउ टेल मी, हमारे पास ये पूरी एयर है और हमारे पास हो क्या रहा है? 6 ऑक्सीजन कंज्यूम की। 6 ऑक्सीजन अगर मैंने एयर से ले ली है तो मेरे पास एयर थोड़ी सी डिक्रीज होनी चाहिए। डू यू अग्री कि 6 ऑक्सीजन अगर ली तो लेट से मेरे पास इतना थोड़ा सा एयर कम हो जाएगा? इज दैट करेक्ट, अमार एंड रायमा? Yes. बट होता क्या है, जितनी हम ऑक्सीजन कंज्यूम करते हैं उतनी कार्बन डाइऑक्साइड हम दे रहे होते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड भी एयर है। तो हमारे पास ओवरऑल कोई नेट चेंज नहीं हो रहा होता, क्योंकि हम जितनी एयर ले रहे होते हैं उतनी एयर वापस भी तो कर रहे हैं, तो हमारे पास ओवरऑल एयर प्रेशर में कोई चेंज है नहीं है। आर यू गाइज विद मी ओवर हियर, ऑल ऑफ यू? Yes. परफेक्ट। नाउ हमारे पास जो कार्बन डाइऑक्साइड है, इट इज एन एसिडिक गैस, ठीक है। इस एसिडिक गैस को हम ऐसे सिस्टम में ला रहे हैं जहां पर हमारे पास एक अल्कलाइन सब्सटेंस मौजूद है। सो हमारे पास जो ये कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुई है, दैट इज बीइंग एब्जॉर्ब्ड बाय द सोडा लाइन, बाय दिस एल्कली। अब क्या हो रहा है, हमारे पास हो ये रहा है कि इनिशियली हमारे पास कोई नेट चेंज था नहीं। क्यों नेट चेंज नहीं था? बिकॉज जितनी हम ऑक्सीजन ले रहे थे उतनी कार्बन डाइऑक्साइड हम प्रोड्यूस भी कर रहे थे। बट नाउ व्हाट इज हैपनिंग इज कि हमने 6 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन ले लिया और जो 6 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुए थे वो सोडा लाइम के पास चले गए। सो क्या हमारे पास एक ओवरऑल डिक्रीज इन एयर प्रेशर है? इज दिस नाउ क्लियर? बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट कर जाएगी एल्कली के साथ, तो कार्बन डाइऑक्साइड सिस्टम में सस्टेन नहीं कर रही है। सो जो पहले बैलेंस था, जो पहले नेट हमारा जीरो था, अब हमारे पास नेट जीरो नहीं है। देयर इज अ डेफिसिट दैट इज बीइंग क्रिएटेड, एंड ड्यू टू दैट डेफिसिट हमारे पास यहाँ पर एयर प्रेशर रिड्यूस हो गया, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ एयर हैज डिक्रीज, जिसकी वजह से द एयर प्रेशर हैज डिक्रीज ओवर हियर। इज दिस नाउ क्लियर? Yes, yes. Thank you so much. मैं आपको भी क्लियर हो गया? Yes, ma'am. परफेक्ट। अब एक बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है, बचपन में सबने पढ़ा होगा कि हमारे पास एयर प्रेशर जो है, फ्रॉम अ हायर एयर प्रेशर एयर मूव्स टू अ लोअर एयर प्रेशर। तो मेरे पास इस टेस्ट ट्यूब में एक लो एयर प्रेशर क्रिएट हो गया है। ये मेरे पास एक कैपिलरी ट्यूब है। कैपिलरी ट्यूब क्या होती है? कैपिलरी ट्यूब इज अ वेरी नैरो ट्यूब, ये बहुत बहुत पतली होती है, ठीक है। इस कैपिलरी ट्यूब में हमें कलर्ड लिक्विड रख देता है। जब हम स्टार्ट करते हैं ना ये एक्सपेरिमेंट, तो ये कलर्ड लिक्विड की हम इनिशियल पोजीशन देख लेते हैं। सो वी नो कि हमारे पास इनिशियल पोजीशन एट रेस्ट क्या थी। मेरे पास जब ये एयर प्रेशर रिड्यूस होगा तो मेरे पास यहाँ से एयर आएगी, क्योंकि बाहर हमारे पास हायर एयर प्रेशर है। अब जब बाहर से मेरे पास एयर प्रेशर आएगी तो मेरे पास वो एयर इस कलर्ड लिक्विड को, इस ड्रॉप ऑफ लिक्विड को मूव करते हुए लाएगी। सो लेट से मेरा ड्रॉप मूव करके यहाँ पर आ गया। सो कैन आई से कि मेरे पास दिस ड्रॉप ऑफ लिक्विड, द मेजरमेंट ऑफ दिस ड्रॉप ऑफ लिक्विड कैन हेल्प मी क्वांटिफाई द अमाउंट ऑफ एयर दैट वेंट इनसाइड। डू यू ऑल एग्री? Miss, can you tell why the air pressure is like high? Is it initially high? Have we made it high, or it's like हो गया है high because of the low pressure there? हमारे पास जब अंदर लो प्रेशर, पहले तो हमारे पास दोनों जगह पर सेम होगा ना, बिकॉज हवा जो हमारे पास है एट रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर दैट इज सेम। बट यहाँ पर अंदर हमारे पास जो
एयर की वॉल्यूम है वो कम हुई, जिसकी वजह से अंदर एयर प्रेशर कम हो गया। सो कंपैरेटिवली टू द आउटसाइड एनवायरनमेंट, इंटरनल प्रेशर यहाँ पर कम है और बाहर का एयर प्रेशर ज्यादा है रिलेटिवली, राइट? Yes. Okay. दैट्स वाई। एंड इसकी वजह से हमारे पास एयर जो है, ऑक्सीजन जो है, वो अंदर आएगी, बिकॉज दीज ऑर्गेनिजम्स आर कंटिन्यूसली रेस्पायरिंग, दीज ऑर्गेनिजम्स आर कंटिन्यूसली टेकिंग इन ऑक्सीजन। तो हमारे पास अब जो कैपिलरी ट्यूब होती है, दैट इज अ वेरी नैरो ट्यूब। अब लेट्स से ये मेरे पास सिलेंडर है, ये सिलेंडर है, इस सिलेंडर का डेफिनेटली एक रेडियस होगा, और इस सिलेंडर का हमारे पास क्या कहते हैं, हम एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। व्हाट इज द एरिया ऑफ पाई आर स्क्वायर? और पाई आर स्क्वायर में अगर मैं डिस्टेंस को या हाइट को मल्टीप्लाई कर दूं, सो दैट वुड गिव मी द वॉल्यूम। डू यू ऑल एग्री? सो दिस एरिया तो हमें पता है, कैसे पता है? बिकॉज जो ट्यूब है उसका रेडियस हमें पता होगा। पाई आर स्क्वायर से आई कैन फिगर आउट द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ दिस ट्यूब, एंड मेरी कलर्ड लिक्विड कितना डिस्टेंस मूव किया है। If I multiply that distance with the cross-sectional area of this tube, I would find out the volume of air that entered the system. This is how we can figure out how much oxygen was utilized in respiration. Is this clear? Any questions मतलब from नीचे से anyone? दिखा सकती हूँ? Yes, can you explain this formula? Okay, sure. हमारे पास हमें क्या फाइंड आउट करना है? अमाउंट ऑफ एयर। ना अमाउंट ऑफ एयर या तो हम मोल्स में फाइंड आउट कर सकते हैं या वॉल्यूम में फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट? यहाँ पर मोल्स में फाइंड आउट करना इज ट्रिकियर, तो हम वॉल्यूम फिगर आउट कर लेंगे गैस का। वॉल्यूम क्या होता है? ये मेरे पास कैपिलरी ट्यूब है जिससे ऑक्सीजन पास होकर आ रही है। इस कैपिलरी ट्यूब का डेफिनेटली रेडियस होगा, ठीक है? यहाँ पर इसका एक रेडियस होगा, रेडियस कह लो, डायमीटर कह लो, यू कैन फिगर आउट द रेडियस। एंड हमारे पास एक क्रॉस सेक्शनल एरिया जो होगा वो सर्कुलर होगा, ये चीज सर्कुलर है। मेरे पास वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम इज द अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइड बाय मैटर, दैट इज हाउ वी डिफाइन वॉल्यूम, द अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइड बाय मैटर। मेरे पास एयर जो है जब मूव करेगी तो उसने कितना वॉल्यूम मूव किया, मुझे ये फिगर आउट करना है। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? वॉल्यूम इज क्रॉस सेक्शनल एरिया इनटू लेंथ, या फिर आप कह सकते हो क्रॉस सेक्शनल एरिया इनटू डिस्टेंस। ओवर हियर हम क्रॉस सेक्शनल एरिया कैसे फिगर आउट करेंगे? हमारे पास क्रॉस सेक्शन क्या है? हमारे पास सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है। सर्कल का जो एरिया होता है उसका फॉर्मूला इज पाई आर स्क्वायर। डिस्टेंस मुझे कैसे पता चलेगा? डिस्टेंस मुझे ऐसे पता चलेगा, हाउ मच the colored liquid has moved. That would tell me how much air has entered into the system. So इस distance को जब मैं multiply कर दूंगी with the cross sectional area, I would find out the volume of the air. Is this now clear, Amar? Yes, ma'am. To the rest of you, is this entire setup clear? Perfect. अच्छा जी मैम, आपका कोई क्वेश्चन है? No, miss, it was by mistake. ओके, ना हमारे पास इसी सेटअप से हम फिगर आउट कर सकते हैं रेट ऑफ रेस्पिरेशन। कैसे रेट को हम फिगर आउट कर सकते हैं? हमारे पास केमिस्ट्री में हम रेट का क्या फॉर्मूला पढ़ते हैं? अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट यूज्ड या अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड ओवर टाइम। इज दिस हाउ वी फिगर आउट द रेट? नाउ यहाँ पर हमने क्या देखा था? हमने फाइंड आउट किया द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्या होती है? ऑक्सीजन हमारा रिएक्टेंट होता है इन रेस्पिरेशन। नाउ हमने कितना वॉल्यूम यूज अप किया ऑक्सीजन का, वो हमने कैसे फाइंड आउट किया? फ्रॉम आवर फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर इनटू द डिस्टेंस दैट द कलर्ड लिक्विड मूव। ये मूवमेंट कितनी देर में हुई ये हम स्टॉप वॉच से कैलकुलेट करेंगे।
and we would plug in the value of time and plug in the value of volume. So volume of oxygen per unit time would give us the rate of the respiration. Is this now clear to all? इस तरह से respirometer के through we can measure the rate of respiration. ठीक है? Perfect. अब हम ये एक क्वेश्चन के थ्रू अंडरस्टैंड करते हैं कि क्वेश्चन में क्या होता है. बट बिफोर दैट एक आखिरी चीज, हमारे पास respiration is an enzyme controlled process. You all agree, right? हमारे पास glycolysis में enzymes यूज हो रही होती हैं, हमारे पास oxidative phosphorylation में enzymes यूज हो रही होती हैं, dehydrogenases होती हैं. There are a lot of enzymes that we don't even study about जो कि utilize हो रही होती हैं. Can you guys tell me, अगर मेरे पास मैं टेम्परेचर इंक्रीज करूं and increase in temperature, would that have an effect on the rate of respiration? Would temperature affect the rate of respiration? Totally. So जिस तरह हमारे पास बाकी enzyme control processes are affected by temperature, similarly, respiration is also affected by increase in temperature. Similarly, let's talk about increase in substrate concentration. Substrate हमारे पास क्या होता है? Obviously glucose या फिर कोई और अगर हम respiratory substrate use कर रहे हैं. So if we're increasing the substrate concentration, would that affect the rate of respiration? Yes, Raima, you can say that pi r square h upon time would be a correct formula. Totally. Yes, तो हमारे पास substrate increase करने से भी respiration increase होगी. अब ये सारे concepts इस क्वेश्चन के थ्रू हम अंडरस्टैंड करते हैं. Okay, let's do this question. I think so ये 2018 का question है. Yeah, I think so it's from winter 2018. Anyways, now a respirometer can be used to measure the rate of respiration of germinating seeds. Germinating seeds क्या होते हैं? Germinating seeds वो होते हैं जो हमारे पास जब हम सीड को एंटर करते हैं सॉइल में और उसकी ग्रोथ स्टार्ट हो रही होती है, उस ग्रोथ के फेज को हम जर्मिनेशन बुला रहे होते हैं. सो ये हमारे पास जर्मिनेटिंग सीड्स है. जर्मिनेटिंग सीड्स कैन अंडरगो रेस्पिरेशन बिकॉज ऑब्वियसली हमारे पास ग्रोथ के लिए एटीपी चाहिए होता है. वो एटीपी कहाँ से आ रहा होता है? वो एटीपी आ रहा होता है फ्रॉम रेस्पिरेशन. So germinating seeds undergo respiration. So a respirometer can be used to measure the rate of respiration of germinating seeds. So ये हमारे पास seeds हैं. Seeds are our respiratory organism over here. So ये हमारे पास respiring organism है. ये हमारे पास separation है between the respiring organism and the alkaline solution. यहाँ पर हम potassium hydroxide solution use कर रहे हैं. This is our capillary tube और ये हमारा colored liquid है. अच्छा जी. State the role of potassium hydroxide solution in the use of respirometer. What does an alkaline solution do? For neutralization reaction, Sorry, आपकी आवाज glitch कर गई थी हमारी. Can you repeat? it absorbs CO2 and goes under neutralization reaction. Yes. So हमारे पास absorbs CO2. Perfect. So it is responsible for absorbing CO2. So it absorbs CO2. Now, सो यानी सोडा लाइम की जगह KOH भी यूज कर सकते हैं इस प्रोसेस में. yes, हम लोग कोई भी alkaline solution यूज कर सकते हैं because कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड इज एसिडिक गैस. हमें उस एसिड को न्यूट्रलाइज करना, उसको रिमूव करना है उस एसिडिक गैस को. So for that we can use any alkaline solution in this experiment. As respiration takes place, oxygen is used by the seeds and the colored liquid moves down the tube. Describe the role of oxygen in aerobic respiration. Now, हमारे पास ऑक्सीजन कौन से स्टेप में यूटिलाइज हो रही होती है? सबसे पहले हम वो मेंशन करेंगे. ऑक्सीजन is used
in the oxidative phosphorylation. This would be your first marking point. It acts as the terminal, or you can say final, electron acceptor. And combines with protons to form water. It ensures that the ETC is not blocked, or you can say saturated, in order is not blocked for the oxidative phosphorylation to take place continuously. So this is how you would tell about the role of oxygen in aerobic respiration. Now, this is where the experimental setup comes in. Respirometers, as shown in figure 8.1, were used to investigate the effect of temperature on the rate of respiration. Ge- um, yeah, is there a question, Raima? मिस वो स्क्रीनशॉट लेना है प्लीज स्क्रीनशॉट Okay, sure. ऊपर वाले का या इसका? मिस कैन यू शो द अपर वन आल्सो फॉर अ मिनट मिस कैन आई सिर्फ लाइक कैन वी आल्सो राइट न्यूट्रलाइजेशन या सिर्फ absorbs is the correct statement The marking point is basically absorb CO2. आपको marks, अगर आप neutralization लिखोगे आपको marks नहीं मिलेंगे. Absorption of CO2 बताओगे तो marks मिलेंगे. You can extend upon this that absorb CO2 by undergoing a neutralization reaction. That's fine. But this gets you the mark, not the neutralization वाली बात. okay miss thank you Ajay. Respirometers, as shown in figure 8.1, were used to investigate the effect of temperature on the rate of respiration of germinating pea seeds. So we are basically seeing how temperature affects the respiration. Four respirometers, A, B, C, and D, were set up. A and B in a water bath maintained at 10 degrees Celsius. C and D in a water bath maintained at 25 degrees Celsius. So let's draw four test tubes. So this is A, B, C, and D. A and B had a temperature of 10 degrees Celsius. C and D had a temperature of 25 degrees Celsius. A and C each contained 30 germinating pea seeds. So यहाँ पर हमारे पास pea seeds हैं in A and C. B and D each contained glass beads with a total volume equivalent to 30 pea seeds. यहाँ पर हमारे पास glass beads हैं. The respirometers were left in the water bath for 10 minutes. In each respirometer, the position of the colored liquid in the graduated tube was then marked time 0 minutes. हमने 10 minutes के लिए इन चारों टेस्ट ट्यूब्स को, इन चारों respirometers को water bath में रख दिया. क्यों water bath में? Can you guys tell me why are we leaving the respirometers for 10 minutes in the water bath first? ये question आगे आएगा, so that's why I'm asking you Abhi. What is the purpose of leaving the respirometers in the water bath for 10 minutes? so the temperature is constant एक ही temperature पे सब होंगे like Exactly. does it 10 make sense minutes. Yes, that's the answer. हम obviously water bath में temperature maintained है. That water bath का जो temperature है conduction और convection के through वो हमारे पास इन respirometers तक पहुंचने में कोई magically वो 1 मिनट के अंदर तो हमारे पास water bath का और test tubes का temperature same तो नहीं हो जाएगा. It would take time. So initially we need to give that time for the respirometers
to be same as the temperature of the water bath. That is why we're leaving these respirometers in the water bath for 10 minutes. और उसके 10 minutes बाद हम अपना experiment start कर रहे हैं. ठीक है? Is this clear to all? Perfect. In each respirometer, the position of the colored liquid in the graduated tube was then marked. हमने initial position mark कर दी कि initially हमारे पास वो colored liquid किधर था. After 5 minutes, the distance moved by the colored liquid was measured. हर 5 मिनट के बाद हम उस colored liquid का जो distance moved है वो measure कर रहे थे. The volume of oxygen taken up was calculated for each respirometer. कैसे हमने volume calculate किया होगा? Pi r square into the distance moved by the colored liquid. This was repeated after 10, 15 and 20 minutes. Figure 8.2 shows the results of the experiment. Now, B and D में क्या थे? B and D were basically our glass beads. A was our pea seed at 10 degrees Celsius, and C were the pea seeds at 25 degrees Celsius. Now, suggest why the respirometers were left for 10 minutes before measurements were made. So, ये अभी हमने डिस्कस कर लिया पार्ट. इसके लिए हम जो वर्ड यूज करते हैं वो आप वर्ड यूज कर सकते हो to ensure that the temperature of respirometer is same as the water bath. एक्सपेरिमेंटली इस प्रोसेस का एक नाम होता है. इस प्रोसेस को हम बुला रहे होते हैं acclimatization. No, this is a P4 question. This is a P4 question. इसको हम acclimatization भी बोलते हैं. आप लोगों ने शायद acclimatization का टर्म with respect to the biological condition भी सुना होगा. उसमें क्या होता है कि जो लोग higher altitudes पे रहते हैं, mountainous areas में रहते हैं, वहां पर for them to adapt to that environment उनके अंदर एक्लिमेटाइजेशन हो जाती है, यानी RBCs बढ़ जाते हैं. एक्लिमेटाइजेशन का मतलब ये होता है टू अडेप्ट अकॉर्डिंग टू द सराउंडिंग. तो यहाँ पर एक्लिमेटाइजेशन का क्या मतलब हुआ? दैट द रिस्पायरोमीटर इज अडेप्टिंग टू द टेम्परेचर ऑफ द वाटर बाथ. वी लीव इट फॉर 10 मिनट या ऐसे ही. और उन 10 मिनट्स के बाद हम फिर अपनी मेजरमेंट स्टार्ट करेंगे. आपने तो मुझे बताया राहिमा कि हमारे पास जब 10 मिनट्स के लिए छोड़ेंगे तभी तो टेम्परेचर सेम होगा हमारे रिस्पायरोमीटर का विद वाटर बाथ. क्योंकि उससे पहले तो मेरा रिस्पायरोमीटर रूम टेम्परेचर पे होगा ना. रूम टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस थोड़ी होता है. नहीं, मैं For- यही पूछ रही थी कि 10 मिनट वाटर बाथ के अंदर छोड़ेंगे ना, वैसे ही तो नहीं छोड़ेंगे. लाइक बस बाहर तो नहीं 10 मिनट्स के लिए छोड़ दिया ना. विल पुट इट इन द वाटर बाथ हाँ, फॉर इन 10 द मिनट्स वाटर बाथ. यस यस. राइट. ओके. हाँ या यस अम्मा, आपका कोई क्वेश्चन था? अम्मा, वर यू आस्किंग समथिंग? आपने माइक खोला था. ओके ओके, ठीक है. So acclimatization in experimental terminology is what? For a setup to adapt to its environment. तो यहाँ पर respirometer की acclimatization का क्या मतलब हुआ? Respirometer की acclimatization का मतलब ये हुआ it is adapting to the surrounding temperature. ठीक है? So यहाँ पर अगर आप acclimatization भी लिख दोगे, for acclimatization of temperature, that would also be perfectly acceptable. अच्छा जी, suggest why respirometers B and D were used in this investigation. Respirometer B and D में glass beads है. जो normal glass beads होते हैं या जेली बीड्स होते हैं वो रख दिए जाते हैं. और यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हो दैट हमारे पास कोई भी रेस्पिरेशन नहीं हो रही है. कोई वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन अपटेक हमने नोटिस नहीं किया है. बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन जीरो पे ग्राफ है. व्हाट डू यू गाइस थिंक? ग्लास बीड्स क्यों रखे हैं? रिस्पायर तो ये करते नहीं है, लिविंग ऑर्गेनिज्म ही नहीं है. व्हाट इज द पर्पस ऑफ कीपिंग दीज ग्लास बीड्स? एनी सजेशंस? करेक्ट मुताहर.
नहीं नहीं, नॉट इंक्रीज सरफेस एरिया राइमा, बिकॉज ये ग्लास बीड्स ना अलग से जैसे हमने पीसीएस को देखा है, उसी तरह से हमने दो ग्लास बीड्स को भी इसी तरह से एक्सपेरिमेंटल सेटअप में डाला हुआ है, ठीक है। एग्जैक्टली एज अहमद एंड मुताहर मेंशन, टू हैव समथिंग टू कंपेयर विद, इसको हम क्या बुलाते हैं, हम कंट्रोल बुलाते हैं। सो ये हमारे पास जो पी एंड डी है वो क्या है हमारे पास, ये हमारे पास कंट्रोल सेटअप है। यस, कंट्रोल इज द वर्ड, कंट्रोल सेटअप है। अब हमें कंट्रोल सेटअप पे मिलेगा एक मार्क, बिकॉज वी हैव टू आइडेंटिफाई व्हाट इज हैपनिंग ओवर हियर, राइट। सो बी एंड डी are control are acting as control setups which ensure that there is no other, or you can say which acts as a standard baseline for comparison. Now calculate the rate of oxygen uptake in centimeter cube per minute for respirometer C between 5 and 20 minutes. Give your answer to two significant figures. अच्छा जी, हमें रेट ऑफ ऑक्सीजन अपटेक देना है बिटवीन 5 and 20 मिनट्स। दिस इज आवर ग्राफ फॉर, ये किसके लिए देना है, सी के लिए, रेस्पिरोमीटर सी के लिए। सो 5 मिनट से 20 मिनट्स के बीच में, 5 मिनट्स पे हमारे पास यहाँ पर है, 20 मिनट्स पे हमारे पास यहाँ पर है। सो ये टोटल कितने मिनट्स बनते हैं, ये हमारे पास 15 मिनट्स बनते हैं। Now, how much volume of oxygen has been taken up between these 15 minutes? हमारे पास initial volume है 0.4, and अगर हम देखें final volume C पर, so this is how many boxes? 1, 2, 3. And एक जो हमारे पास 5 boxes हैं उसमें फर्क है 0.2 का। So 0.2 is equal to 5 boxes to 1 box की क्या वैल्यू होगी, and this would come out to be 0.04 centimeter cube. So if 1.6, this would be 1.64, 1.68, and this would be 1.72. So हमारे पास फाइनल वॉल्यूम क्या है, फाइनल वॉल्यूम इज 1.72। सो हम क्या करेंगे, हम बेसिकली कर देंगे फाइनल माइनस इनिशियल वॉल्यूम, फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम upon time. This comes out to be 1.72 minus 0.4 upon 15. I think so this would be 0.088. Yeah, 0.0086 होगा या 0.008 होगा, something like that. 1.64, 1.68. 8 plus 4, isn't that say 0.72? अगर 0.04 का एक बॉक्स है, I think so it should be 1.72. Okay, let me see. Let me zoom in and see. कहाँ पे? Okay, yes, the cross is in the middle of the box. Right. Sorry, my bad. 1.70. Thank you so much. So 1.70, and the answer would be, is it 0.0866? Are you guys getting this? या फिर 0.0088 होगा, something like this. Okay, so this would be our answer. या बट उससे राय में पता है इतना फर्क पड़ेगा नहीं, बिकॉज आई थिंक सो 0.0867 मेरे पास 1.72 से भी वही आ रहा था। Yes, yeah, I'm also getting that in my calculator. 0.0866
बहुत सारे होंगे तो इनको हम राउंड ऑफ कर देंगे टू 3 significant figures. तो अगर आप 1.72 भी लोगे ना, I was still getting this answer. So that's not that big of a deal, क्योंकि आपको आंसर जो है वो नियरेस्ट 2 significant या फिर 3 significant figures में देना होगा. So that is why हमारे पास अगर तो 2 significant figures है तो 0.086 है, तो 0.087 हो जाएगा आंसर. यस यस यस, रेंज होती है ग्राफ में. अगर तो बिल्कुल एग्जैक्टली विजिबल नहीं है, सो दे हैव अ रेंज. एंड बायो के पेपर में इतना मैथमेटिकली एक्यूरेट होना जरूरी नहीं होता. देयर इज ऑलवेज अ रेंज, +-2 की रेंज होती है. बट इफ इट इज लाइक ऑब्वियस यानी एग्जैक्ट स्क्वायर्स पर है, फिर देयर इज नो रेंज. बट अगर बीच में कहीं है तो फिर रेंज होगी. सो दिस वुड बी आवर फाइनल आंसर. Okay, explain why there is an increased rate of respiration of germinating pea seeds between 10 degrees Celsius and 25 degrees Celsius. या अगर तो उन्होंने खुद वैल्यूज दी हुई हैं फिर तो डेफिनेटली कोई रेंज नहीं होगी. रेंज तब होती है व्हेन देयर इज अ चांस ऑफ एरर. इफ देव गिवन टेबल्स तो वहां पे तो कोई चांस ऑफ एरर है ही नहीं ना, सो तब रेंज नहीं होगी ऑब्वियसली. अच्छा जी, explain why there is an increased rate of respiration of germinating pea seeds between 10 degrees Celsius and 25 degrees Celsius. हमारे पास rate of respiration increase करेगा. Rate of respiration इसलिए increase करेगा because as temperature increases, the enzyme activity increases. Why is that happening? Because the kinetic energy increases, resulting in an increased frequency of effective collisions, due to which more enzyme substrate complexes are formed. Now मैं अक्सर शॉर्ट फॉर्म में आंसर लिख देती हूँ टू सेव टाइम, बट ऑब्वियसली आप लोग शॉर्ट फॉर्म्स में नहीं लिख सकते. आप लोगों को पूरा पूरा आंसर लिखना पड़ेगा. Okay, last part. Suggest why carrying out the experiment with germinating seeds at 50 degrees Celsius could result in a lower rate of respiration than at 25 degrees Celsius. Why does an increase till 50 degrees Celsius causing a lower rate of respiration? What could be a possible answer? Right. At high temperatures, the enzyme denatures. At extremely high temperatures, or you can say at temperatures above the optimum temperature, बल्कि ये ज़्यादा better है. At temperature above the optimum temperature, the enzyme undergoes denaturation. Thus, less enzyme substrate complexes are formed. Yeah. यूजुअली हमारे पास जो रेस्पिरेशन के जो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस होते हैं दे आर तो लिटरली रटाफिकेशन की बेसिस पे आपको. नो एंजाइम वाज मेंशन्ड इन द क्वेश्चन राइमा. एंजाइम कोई भी उन्होंने मेंशन नहीं किया क्वेश्चन में. बट वी नो दैट रेस्पिरेशन इज एन एंजाइम कंट्रोल्ड प्रोसेस. हमारे पास हर जो भी रिएक्शन हो रहा होता है वो एंजाइम कंट्रोल होता है. हमने डिहाइड्रोजनेसेस की बात की है. हमारे पास जब जब डिहाइड्रोजनेशन होगी वहां वहां dehydragenases enzymes are being used. So this is our prior information. So they expect us to know that respiration is an enzyme controlled process. अच्छा जी. So इस तरह से अच्छा वैसे यूजुअली क्वेश्चन आता है P5 में, बट P4 में भी आ सकता है. P4 में ये इस तरह का क्वेश्चन आता है, स्टेप बाय स्टेप आपको एनालिसिस करना होता है ग्राफ्स का या डेटा का जो उन्होंने दिया हुआ होता है. Okay. So, last thing I think so हमें redox indicator करना है and with that हमारा respiration का chapter complete हो जाएगा आज. It would only take 10 more minutes. अच्छा, before I proceed to redox indicator,
I just wanted to discuss one thing about topical past papers. Um, I would share a topical past paper sheet for respiration, इंशाल्लाह या तो आज रात को या फिर सुबह तक, कल की क्लास से पहले वो मैं ग्रुप पे और जीसी पे अपलोड कर दूंगी आपकी टॉपिकल वर्कशीट. So it would have around 10 to 12 questions. Now, for those of you who are also taking AS with me, उनके साथ तो खैर मैं ये कर चुकी हूँ, बट आप लोगों को मैं बता देती हूँ how I plan to do the topical thing with you guys. Now, tell me if this works for you. मैं personally ये चाहती हूँ, I want to see how you guys are approaching your answers, how you guys are writing your answers. So I would assign that worksheet to you. जिसके first 3 to 4 questions I would do with you guys in the class. तो कल हम लोग 3-4 topical questions respiration के साथ कर रहे होंगे. With the rest of the questions, you guys would have 5 to 6 days, यानी weekend तक का time होगा for you guys to turn in the remaining questions. And obviously, I would grade it and I would give you all personalized feedback on your Google Classroom. The only reason why I'm assigning this to you guys and I want you guys to do topical worksheets and submit them to me, I want to see how each and every one of you is approaching the questions and how are you guys writing the answers. ताकि मुझे हर किसी की जो भी weaknesses हैं या जहाँ पे भी फोकस पॉइंट्स हैं वो मैं आप लोगों के हाईलाइट कर सकूं, बिकॉज क्लास में मैं करके बढ़ जाऊंगी, आप लोग एक्टिवली अटेम्प्ट नहीं कर रहे होगे वो आंसर. So just so I know how you guys are writing answers, I want to see at least 4 to 5 written answers by you guys. So are you guys okay with that if I assign that thing to you? Would you guys submit it to me for checking? या नोट्स भी मैं आज आप लोगों को अपलोड कर दूंगी. Yeah, it's totally up to you, Amna, as whatever is suitable. आप लोगों के पास worksheet जैसे कि for the AS students, I gave them the worksheet on Saturday और वो मुझे इस Saturday तक उनकी due date है submission की. So that weekend पे I have for grading because weekend पे मेरी इतनी classes नहीं होती and it's my off. तो yeah, I just want कि मुझे सबके answer writing strategies का पता हो सो दैट मैं उस हिसाब से सबको लेकर चलूं, बिकॉज इन क्लास में इंडिविजुअली सबकी आंसर्स को या सबके वीक पॉइंट्स को शायद इतनी अच्छे से पर्सनली कवर ना कर सकूं. सो थ्रू द ग्रेडिंग आई वुड डू दैट. दीज वुड बी फॉर P4, yes, बिकॉज P5 तो हम सारे टुवर्ड्स द एंड कर रहे होंगे ना, मार्च से लेके अप्रैल हम लोग P5 सब साथ कर रहे होंगे. एंड P5 भी एक दो मैं आप लोगों को असाइन करूंगी सो दैट आई कैन सी हाउ आर यू गाइज राइटिंग योर एग्जाम पेपर. सो P5 तो हम इंशाल्लाह मार्च अप्रैल में देखेंगे. अभी हम P4 की, ताकि हमारी टॉपिकल भी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए पास पेपर्स की और आप लोग भी खुद कर रहे हो, बिकॉज अर्ली पेपर्स में मैं ही कर रही होंगी और आप लोग मेरे साथ क्वेश्चन आंसर उस वक्त कर रहे होगे. बट आई ऑल्सो वॉन्ट टू सी हाउ यू गाइज आर राइटिंग योर आंसर्स, बिकॉज इवेंचुअली आप ही लोगों ने जाके आंसर्स लिखने हैं ना. दैट्स वाई. सो इंशाल्लाह नोट्स भी मैं आज रात तक या कल सुबह तक शेयर कर दूंगी एंड वर्कशीट भी मैं रात को बनाऊंगी, और अगर रात को पूरी बन गई तो मैं रात को ही अपलोड कर दूंगी, वरना फिर सुबह I'll send it to you guys. ठीक है. Now let's cover the last bit जो कि हमारे पास है. क्या है? Redox indicators. अच्छा जी, तो ये आपका लास्ट LO है इस टॉपिक का. Describe and carry out investigations using redox indicator, including DCP, IP, and methylene blue to determine the effects of temperature and substrate concentration on the rate of respiration of yeast. Actually, अच्छा, describe and carry out investigations using simple respirometers to determine the effect of temperature on the rate of respiration. ये मैं जल्दी से पहले करा देती हूँ, फिर हम लोग रिडॉक्स इंडिकेटर पे जाते हैं. अभी हमने देखा कि किस तरह से हम सिंपल रेस्पिरोमीटर से फिगर आउट कर सकते हैं रेट ऑफ रेस्पिरेशन, और अभी हमने कैलकुलेट भी किया रेट ऑफ रेस्पिरेशन, दैट वी नीड टू नो द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन दैट वाज कंज्यूम्ड एंड कितनी देर में वो कंजम्पशन हुई. उससे हम सिंपली क्या कर लेंगे, रेट फाइंड आउट कर लेंगे. और यहाँ पर हमने देखा कि हमारे पास जब हमने टेम्परेचर इंक्रीज किया तो हमारे पास रेट जो है वो इंक्रीज हो रहा है. कैसे इंक्रीज हो रहा है? ग्राफ की स्टीपनेस. दिस इज अ स्टीपर ग्राफ, दिस इज अ लेस स्टीपर ग्राफ. अगर मेरे पास स्टीपर ग्राफ है इसका मतलब है इसका जो रेट है वो ग्रेटर है, और अगर मेरे पास लेस स्टीप ग्राफ है तो इसका मतलब है कि इसका जो वो है रेट ऑफ रेस्पिरेशन वो स्लोअर है. इसको मैथमेटिकली हम कैसे देख सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से हाइपोथेटिकली स्पीकिंग, जब हमारा रेस्पायरोमीटर हम देख रहे थे, सो बल्कि रिडॉक्स इंडिकेटर से ही देखते हैं. एक सेकेंड. दिस इज अ टेस्ट ट्यूब, ठीक है, और इस टेस्ट ट्यूब में लेट्स से
यीस्ट सेल्स हैं। नाउ हमारे पास जो यीस्ट सेल्स हैं इनमें हम एक रीडॉक्स इंडिकेटर ऐड कर देते हैं। नाउ व्हाट इज अ रीडॉक्स इंडिकेटर? हमारे सिलेबस में हमें दो रीडॉक्स इंडिकेटर के बारे में पता होना चाहिए, DCPIP एंड मेथिलीन ब्लू। Yeah, that's the name. I always get confused with this name. Methylene blue. अच्छा जी, हमारे पास DCPIP का फुल नेम आपको नहीं पता होना चाहिए, बट इट्स डाइक्लोरोफिनॉल इंडोफिनॉल। ठीक है, ये एक केमिकल सोल्यूशन होती है। हमारे पास यू आर ओनली एक्सपेक्टेड टू नो दिस शॉर्ट फॉर्म। ठीक है, अच्छा जी। पीएच मेजर्स याद है, हम जब पीएच मेजर करते थे सोल्यूशन का तो हम पीएच इंडिकेटर्स यूज करते थे। वही कॉन्सेप्ट है एक रीडॉक्स इंडिकेटर का। क्यों हम रीडॉक्स इंडिकेटर यूज करें रेस्पिरेशन में, उनका क्या काम है? हमारे पास ग्लूकोज है, दिस ग्लूकोज becomes pyruvate, right? now this is glycolysis। glycolysis में क्या होता है, हमारे पास डिहाइड्रोजनेशन हो रही होती है। this is dehydrogenation when the glucose loses hydrogen। और ये हाइड्रोजन कौन एक्सेप्ट कर लेता है? ये हाइड्रोजन NADH एक्सेप्ट कर लेता है और रिड्यूस हो जाता है। तो इस पॉइंट पे क्या हुआ, दिस इज रिडक्शन। एंड वी नो दैट डिहाइड्रोजनेशन इज व्हाट, इट्स ऑक्सीडेशन, राइट? तो हमारे पास कैन वी से दैट बाकी केमिकल एक्सपेरिमेंट्स की तरह, बाकी केमिकल रिएक्शन की तरह जो हमारे पास रेस्पिरेशन होता है उसमें भी रिडक्शन ऑक्सीडेशन हो रही होती है। सो वी हैव redox reactions taking place during our respiration, right? Now, हमारे पास DCPIP and even methylene blue, these can act as proton acceptors। ये हमारे पास ऑर्गेनिक कॉम्पाउंड होता है, ठीक है, ये रिएक्शंस अंडरगो करता है। हमारे पास, आप लोगों को याद होगा, हमने इक्वेशन क्या पढ़ी थी, NAD प्लस 2H प्लस 2 electrons forms NADH प्लस प्रोटॉन्स। हमारे पास जो ये प्रोटॉन्स हैं ये NAD को तो ऑक्सीडाइज कर रहे हैं इनटू, सॉरी, NAD को रिड्यूस कर रहे हैं इनटू रिड्यूस्ड NADH, बट हमारे पास प्रोटॉन्स कैन ऑल्सो बी एक्सेप्टेड बाय दीज मेथिलीन ब्लू और DCPIP। अगर DCPIP और मेथिलीन ब्लू प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लेगा, प्रोटॉन को गेन कर लेगा, wouldn't that be the reduction of these indicators? Won't these indicators get reduced when they gain proton? Do you all agree कि हमारे पास redox indicators जो हैं वो reduce हो जाएंगे because they are accepting a proton? Are you all with me? Perfect। हमारे पास जिस तरह से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स में हम देखते थे ना कि कलर चेंज होता है, KMNO4 में क्या होता था, पर्पल टू कलरलेस हो जाता था। पोटेशियम डाइक्रोमेट में आई थिंक सो ऑरेंज टू ग्रीन कलर चेंज आता है। बिल्कुल उसी तरह से जब DCPIP या मेथिलीन ब्लू रिड्यूस हो जाएंगे, व्हेन दे वुड गेन दिस हाइड्रोजन, उनका कलर चेंज हो जाएगा। ओरिजिनल कलर क्या होता है? ओरिजिनली दे आर ब्लू। आफ्टर गेटिंग रिड्यूस्ड they become colorless। नाउ हमारे पास ये कलरलेस कब होते हैं, जब ये प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लेते हैं। प्रोटॉन कब एक्सेप्ट करेंगे, जब क्या कहते हैं, हमारी रेस्पिरेशन हो रही होगी, जब ग्लाइकोलिसिस में या लिंक रिएक्शन में या क्रेब्स साइकिल में जब हमारे पास प्रोटॉन NAD प्लस एक्सेप्ट करा होगा, तभी हमारे पास ये DCPIP और मेथिलीन ब्लू एक्सेप्ट कर सकते हैं प्रोटॉन्स। सो हमारे पास रिडक्शन ऑफ द रिडॉक्स इंडिकेटर्स टेक प्लेस ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। तो मेरे पास इनिशियली when I'll add the redox indicator, yes, DCPIP and methylene blue both are blue originally and both turn colorless when they get reduced। तो हमारे पास initially
जो हमारे redox indicators and they would be blue. However, once respiration has taken place, this solution would become colorless. When they would become colorless, that would tell us कि हमारे पास respiration हुई है. ठीक है, यहां तक सब मेरे साथ है. Is this clear? Perfect. हमारे पास इस सेटअप से हम रेट ऑफ रेस्पिरेशन फिगर आउट कर सकते हैं. कैसे फिगर आउट कर सकते हैं? एक तो हम रेस्पायरोमीटर से रेट ऑफ रेस्पिरेशन फिगर आउट कर सकते हैं. दूसरा, हमें रेडॉक्स इंडिकेटर से भी रेट ऑफ रेस्पिरेशन फिगर आउट कर सकते हैं. यस अमर, यू कैन आस्क योर क्वेश्चन. मिस यू सेड दैट जब हाइड्रोजन लूज करते हैं हम ग्लाइकोलिसिस में, हम्म. आई मीन ऑक्सीडेशन होती है, तो NADH एक्सेप्ट करता है एंड गोज इनटू रिडक्शन. बट हाउ डज यस. दैट हैज एन इफेक्ट ऑन DCPIP एंड मेथिलीन? तो उनके लिए हाइड्रोजन अवेलेबल होगा? देखो, हमारे पास NAD प्लस कितने हाइड्रोजन एक्सेप्ट कर रहा है? एक हाइड्रोजन एक्सेप्ट कर रहा है, राइट? एक हाइड्रोजन हमारे पास रह जाता है ना पीछे, वो हमारा कौन एक्सेप्ट कर सकता है? ये DCPIP और मेथिलीन को. सही है. और ये हाइड्रोजन आएगा कहाँ से? ये हाइड्रोजन तभी आएगा ना जब हमारे पास डिहाइड्रोजनेशन या ऑक्सीडेशन हो रही होगी ड्यूरिंग ग्लाइकोलिसिस और द लिंक रिएक्शन और द क्रेब्स साइकिल. राइट अमर? Yes, miss. So दैट्स हाउ this हमारे hydrogen is used to reduce the redox DCPIP and indicators. methylene. यस, टोटली Okay. राइट. तो हमारे पास रिडॉक्स इंडिकेटर का कलर चेंज कब होगा? जब वो रिड्यूस हो जाएंगे, जब वो हाइड्रोजन गेन करेंगे. और हाइड्रोजन वो कब गेन कर रहे होते हैं? जब रिस्पिरेशन हो रही होती है. सो हमारे पास अगर ब्लू टू कलरलेस चेंज आया है रिडॉक्स इंडिकेटर्स का, दैट मीन्स कि रेस्पिरेशन हुई है. अब इससे हम रेट कैसे मालूम कर सकते हैं? We can calculate the time, sorry, we can measure the time that was taken for this color change to take place. आप लोगों ने केमिस्ट्री के एक्सपेरिमेंट्स में न्यूट्रलाइजेशन की होगी, तो आप लोग उसमें शायद टाइम मेजर करते होंगे स्टॉप वॉच से, या कलर चेंज को ऑब्जर्व करने के लिए आप लोग टाइम मेजर करते होंगे रेट ऑफ रिएक्शन निकालने के लिए. एग्जैक्टली उसी तरह हम क्या करेंगे, व्हेन वी आर एडिंग दिस redox इंडिकेटर, तब हम अपनी स्टॉप वॉच ऑन करेंगे. और हमारे पास जितनी देर लगती है कलर को कंप्लीटली चेंज होने में, उतनी देर तक वो स्टॉप वॉच चलती रहेगी. और जब हमारा कलर चेंज कंप्लीटली डिकलराइज हो जाएगा, बिल्कुल कोई ब्लू के ट्रेसेस नहीं होंगे, दैट्स व्हेन वी स्टॉप द स्टॉप वॉच. तो हमारे पास कलर चेंज का टाइम आ गया. कलर चेंज क्यों हो रहा था? रेस्पिरेशन की वजह से हो रहा था. सो वी हैव द टाइम टेकन फॉर कंप्लीट रेस्पिरेशन टू टेक प्लेस. तो हम क्या करेंगे, हम सिंपली हमारे पास टाइम आ जाएगा रेस्पिरेशन का. इसके थ्रू हम कैसे इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं? क्या कहते हैं, व्हाट यू से, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर. पहले हम ये वाला एक्सपेरिमेंट जो हमने किया है वो हम 10 डिग्री सेल्सियस पे करें. एंड लेट्स से 10 डिग्री सेल्सियस में कलर चेंज को लगे 100 सेकेंड्स. और इसी टेम्परेचर को, सॉरी, हम इसी एक्सपेरिमेंट को रिपीट करें एट 20 डिग्री सेल्सियस. 20 डिग्री सेल्सियस में लेट्स से हमें 70 सेकेंड्स लगे. सो हमारे पास 20 डिग्री सेल्सियस पे the color change was faster. Fast color change. And fast color change का क्या मतलब है? Fast reaction. और fast reaction हमें क्या बता रहा है? That temperature causes an increase in the rate of respiration. Is this clear? हम किस तरह से इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं redox indicator के थ्रू how temperature affects the rate of respiration? Any questions? Perfect. Okay. So हमारे पास with that our theory part of this chapter is complete.